So, good evening, everyone. Once again, this is the third day of your chapter quadratic equation, and last day we utilized the class only to solve the doubts. Now, so in today's class, we'll be first understanding what is the nature of fruits first of all. Now, what is this nature of fruits? Let me explain you. But before starting about with nature of fruits, let me clearly explain you the meaning of rational numbers and irrational numbers, because this will help you in understanding this topic properly. And yes, let me tell you one more thing, that to understand and do this particular topic properly, you need to know all the formulas of algebra. Like you need to know what is a plus b whole square, what is a minus b whole square, what is a plus b whole cube, all the formulas of a square plus b square. मतलब जितने भी मैंने formula जो first day दिया था, if you don't have, you ask your friends to share that page and you write it in your copy. And when you are attending the class, please keep your copy open so that you can refer to the formula when I am saying. If you follow these things, you'll find that you are very much comfortable in attending the class. You'll find you'll find it very comfortable, very smooth in attending the class, and also the class will be very, very interesting. These are the take ways like where you can improve your mathematics. The ways are like you can keep your formula copy open and keep in front of you whichever topic I'm giving you. Instead of searching in Google, that particular formula, you must have your own handwritten formula. So with this, let's start nature of fruits. So to begin nature of fruits, let me explain you once again real numbers. वैसे मैंने real numbers बताया, but फिर भी मैं एक बार real numbers के बारे में फिर से एक बार बता. Now, what are real numbers? Now, first of all, I must categorize that set of all. I must say this way: that set of all rational numbers. Set of all rational numbers and irrational numbers are called real numbers. Clear? मतलब rational और irrational के जो set है, इनका जो union है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? Real numbers कहते हैं. But what is most specifically, if I say what is a rational number, अगर हम बहुत स्पेसिफिकली जाएंगे, नहीं रियल नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर क्या होता है, irrational क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट क्लियरली. लिसन, see everyone, any number which can be expressed in the form a by b, any number which can be expressed in the form a by b for b not equal to 0 is called a rational number. Clear? And if you want to understand the meaning clearly, you must understand these two things. What are these two things? Number one, that every rational numbers can be expressed in terminating decimal. सारे rational numbers को हम लोग terminating decimal में हम लोग express कर सकते हैं, या फिर non terminating but recurring, non terminating and recurring. What is this non terminating and recurring? Let's take for example 2.5. क्या 2.5 को हम लोग a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? Yes, we can definitely express in the form a by b, because we can write 2.5 as 25 by 10, which is 5 by 2. Clear? Now we are finding that 5 by 2 is what? A terminating decimal, because after decimal, if I divide 5 by 2, you'll find that after decimal the digits is not going to repeat. मतलब repeat नहीं हो रहा है, terminate हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है. जैसे मान लो हम लोग सपोज लेते हैं 25 by let's say 4. If I divide 25 by 4, we are finding that it will terminate. Clear? 6.25. So these type of numbers are called rational. मतलब rational numbers मतलब जो a by b के फॉर्म में है already, और उसको अगर हम चाहे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यस अनमोल, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा इफ यू हैव एनी नेटवर्क इश्यूज. एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लो 5 by 3. 5 by 3 is a non terminating decimal. Why? Because if you divide 5 by 3, अगर हम लोग 5 को 3 से डिवाइड करें
तो तुम देखना डेसिमल के बाद कभी भी वो टर्मिनेट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। देखो डिवाइड करके 5 को 3 से डिवाइड करके 3 1 जा 3 3 6 जा 18 वापस से 3 6 जा 18 वापस 2 रिमाइंडर वापस 0 डेसिमल से नीचे आ तो 3 6 जा 18 मींस व्हाट यू आर फाइंडिंग कि डेसिमल के बाद रिपीट मतलब कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब कहीं रुक रहा है कहीं स्टॉप कर रहा है नहीं, लेकिन किस क्या पैटर्न है बताओ तो? नॉन टर्मिनेटिंग तो है मतलब कभी रुक नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या हो रहा है, एक डिजिट है देखो सेट ऑफ डिजिट वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या है बताओ 1.6666 एंड सो ऑन चलते जाए। तो हम लोग 5/3 को क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट 1.3 और 3 के ऊपर हम एक बार दे सकते हैं, 6 के ऊपर हम बार दे सकते हैं, मतलब वो 6 जो है वो बार बार रिपीट कर, समझ में आया तो बात। तो मतलब रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो a बाय b के फॉर्म में हो और वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.6 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और अगर तुम देखो तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बता सकते हैं तुम लोग। कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि वो नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? एनीवन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एनीवन हियर? सर कोई स्पेसिफिक मतलब एक फाइनाइट क्वोशिएंट आना चाहिए व्हेन वी डिवाइड, लाइक 25 डिवाइडेड बाय 5 6.25। यू आर करेक्ट, बट बिना डिवीजन किए हुए कोई तरीका है बताओ, कोई बता सकते हैं बिना डिवीजन की तरीका है? देखो बता रहा हूं, जैसे मान लो 5/4, ठीक है 5/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 4 है 4 में जो मल्टी 4 जो है उसका फैक्टर क्या क्या है बताओ तो? 2 और 2 ही है ना सिर्फ, 4 का मल्टीपल क्या है बताओ तो? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4? आई मस्ट से दिस वे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4? 2, मतलब अगर मान लो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर 2 और 5 भी सिर्फ हो, सिर्फ 2 एंड 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी हो तो 1 को मत काउंट करो। 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। जैसे देखो 5/3, 3 क्या है 2 और 5 के अलावा फैक्टर्स है यहाँ, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तुम देखो डिवाइड करके इसको। अब जैसे देखो 88/30, 88 बाय मान लो लेट्स से 31, टेल मी एवरीवन, 88/31 इज अ रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग रिकरिंग, no I mean terminating recurring और terminating? क्योंकि 88/31 जो है ये क्या है फॉर्म में बताओ तो? इसका डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के अलावा भी फैक्टर्स है, क्या है 31। तो मतलब जिसके भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और अगर मान लो उसमें फैक्टर्स 2 हो 5 हो या दोनों हो तो वो क्या होगा हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सपोज मान लो 49/25, तो 25 का 25 में फैक्टर्स क्या क्या है 5, ठीक है। तो ये क्या है बताओ तो? ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन वो सारे नंबर जो कि जैसे कि √2, जैसे कि √3, √27, क्यूब रूट ऑफ 9, these numbers are called irrational numbers because do you know ये कभी भी ये नंबर्स कभी भी ना तुम्हारा टर्मिनेटिंग होगा और ना तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। जैसे हम √2 का वैल्यू ये नहीं बोल सकते कि इट इज 1.4314, तुम 1.4314 को 1.4314 से मल्टीप्लाई करो कभी भी 2 नहीं है। मतलब ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। मतलब अगर मान लो 1.4314 है तो 1 2 3 4 मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ में? तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बताओ तो? डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा जैसे 1.232323, देखो क्या है बताओ तो? डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, बार बार 223 रिपीट कर रहा है, तो 23 के ऊपर ऐसा बार बार। लेकिन ये इरेशनल क्या होता है, जैसे √2 √3 ये सब नंबर्स को इरेशनल बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड यू कैन से इरेशनल को इस समझने का तरीका कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो, वो सारे नंबर्स को इरेशनल बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिस नंबर के पावर पे रैडिकल फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में कोई भी पावर हो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 32, क्यूब रूट ऑफ 32 इज इरेशनल और रैशनल? irrational.
क्योंकि इरेशनल इसीलिए बिकॉज हम ऐसे ही बोल सकते हैं परफेक्ट क्यूब नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 to the power 5 4 to the power 1/3, तो 5 into 1/3 becomes 5/3। देखो 2 का पावर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है, मतलब ये इरेशनल है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इरेशनल नंबर को समझने का सबसे बेटर तरीका है। और कुछ बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? नंबर व्हिच इज नीदर टर्मिनेटिंग ओके नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब डेसिमल के बाद क्या होगा पता है? डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मतलब डेसिमल के बाद तुम्हारा एक पैटर्न नहीं होगा, मतलब 2 3 1 2 या 2 3 1 2 ऐसा नहीं होगा। क्या होगा बोलो तो? डेसिमल के बाद मान लो अगर होगा ऐसा नंबर लो, जैसे 1.234 1 4 2 1 9 3 2 1 ऐसे होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, टर्मिनेटिंग में क्या होगा, टर्मिनेटिंग रिकरिंग में कि जैसे 1.2343 हो गया तो वापस से 2343 वापस से 2343, तो इसको बार-बार ना लिख के हम लोग एक बार लिख के ऊपर बांटते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है, समझ में आया बात? और दूसरा बात, ई भी इरेशनल नंबर होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि ई का रेंज क्या होता है? ई का रेंज होता है 2 और 3 के बीच में। पाई भी इरेशनल नंबर होता है। अच्छा बताओ तो पाई इरेशनल होता है या इरेशनल होता है? इरेशनल हुआ। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 जो लेते हैं वो क्या है? 22/7 क्या है? रैशनल है। 22/7 रैशनल है, बट वो डेसिमल फॉर्म में इरेशनल हो जाएगा। देखो 22/7 का डेसिमल फॉर्म नहीं, 22/7 का डेसिमल फॉर्म नहीं, तो पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना वो इरेशनल होता है। लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग उसको 22/7 अप्रोक्सीमेट है और कुछ नहीं। 22/7 इरेशनल नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन पाई वैसा नहीं होता। पाई का 3 पॉइंट के बाद जो है ना, तुम डिजिट्स को पता ही नहीं कर सकते हो कितना तक एंड होगा, मिलियन तक जाता है डेसिमल की अप्रोक्सीमेट अप। If you say approximate up to how many digits? Up to million digits. ठीक है? तो पाई इरेशनल नंबर है, मतलब रिपीट हो रहा है नंबर। हाँ, रिकरिंग मतलब जो डेसिमल के बाद बार-बार रिपीट होता है, जैसे 2 3 2 3 2 3 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, इसको रिकरिंग बोलते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं होता, ना ये टर्मिनेटिंग होता है और ना ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इतना अब देखो, एक्चुअली अब हम लोग रियल नंबर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने जा रहे हैं, ठीक है? इतना सफिशिएंट है। नाउ लेट अस कम टू nature of roots. Now before I mean going to the part nature of roots, let me just take few doubts. Now so see the topic which we have covered just now is actually more than enough. In actually we are studying quadratic equation, but हम लोग ने थोड़ा बहुत ज्यादा ही हम लोग ने डिटेल में रियल नंबर्स का डेफिनेशन पे हम लोग ज्यादा जोड़ देते। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हो गए तो ये क्लास 10 का टॉपिक है। अब सुनना एक बार, नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, एक बात बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ तो सबको कि उसका कितने सारे रूट्स बनते हैं? बताओ तो। इसको सॉल्व करके रूट्स मतलब स्क्वायर रूट नहीं, दिमाग में स्क्वायर रूट मत रखना। रूट्स मतलब उस इक्वेशन को, उसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो कितना रूट्स होता है बताओ तो? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और लेस देन दैट। मतलब डिग्री आई मीन रूट्स 2 होते हैं, राइट? नॉट मोर देन 2, 2 होते हैं रूट्स, ठीक है? तो मान लो उस रूट्स को अगर हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करें तो बताओ तो ये रूट्स निकालने का तुम लोगों ने तरीका जो देखा है उसमें एक फॉर्मूला भी डिराइव किया, याद है ना तुम लोगों? एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था? इट वाज x - b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2x। तो ये क्या था बताओ? ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स डिटरमाइन कर सकते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है? अब एक बात बताओ, जो दो आंसर आएगा वो बिना सॉल्व किए हुए, देखो अब हम एक ऐसा टेक्निक हम लोग जानेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए तुम उसका नेचर को डिटरमाइन कर सकते हो कि रूट्स का नेचर कैसा हो। नेचर मतलब वो कैसा दिखने में होगा, कैसा दिख तो नहीं सकता है वो, ठीक है? इतना मतलब हम लोग जैसा दिखता नहीं है वो, वैसे मतलब वो रियल नंबर्स में कैसा दिखेगा, समझ में आया तो बात? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसका जो आंसर है वो रियल नंबर्स पे अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स में वो कैसा दिखेगा। लेट अस सी। सबसे पहला चीज वो देखने के लिए हम लोग पूरा इक्वेशन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम
हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के भी चेक कर सकते हैं, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इससे हम लोग पूरा रूट्स का नेचर मतलब पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि वो कैसा होगा रूट्स। ठीक है, बाय दिस वैल्यू कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है तो इक्वेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला चीज इफ a, b, c आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या a, b और c अगर रैशनल होगा तब ये काम करेगा। ये क्या काम करेगा? नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने का इस तरीके से। क्या है ये तरीका? सुनना है। अगर मान लो सबसे पहला कंडीशन, इफ द वैल्यू ऑफ d बिकम 0, अगर मान लो उन्होंने सॉल्व किया और d निकाला, ठीक है, d निकाला और d का वैल्यू 0 आ गया, तो देखते क्या होता है। अगर d 0 होता है तो देखते क्या होता है। लेट्स सी, d की जगह 0 लगा देते हैं। What is square root of 0? Tell me everyone. 0. 0. अब देखो यहाँ पे दो आंसर है कि नहीं, दो रूट्स। एक है माइनस बी प्लस 0/2 है, और दूसरा है माइनस बी माइनस 0/2 है। तो ये हो गया माइनस b/2 है, और ये हो गया माइनस b/2। क्योंकि माइनस बी प्लस 0 बोलो या माइनस बी माइनस 0 बोलो, दोनों का मतलब अलग अलग तो हुआ नहीं, एक ही चीज हुआ। तो एक बात बताना तुम लोग, अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। देखो क्या दिख रहा है तुमको? अलग अलग दिख रहा है, रियल नंबर है और इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब ये जो अल्फा और बीटा जो दो तुमको डिस्टिंक्ट रूट्स दिख रहे हैं, इस केस में ये अल्फा और बीटा क्या होगा बताओ तो? इक्वल, सेम वे। समझ में? अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। तुम लोग दिख रहा है, देखो मैंने कोई तुमको जबरदस्ती नहीं बोला कि देखो ऐसा मान लो, तुम ऐसा मैंने बोला नहीं, तुम देख लो, तुमको मानना ही पड़ेगा। देखो t0 आया तो सॉल्व किया मैंने फॉर्मूला यूज करके, तो सॉल्व करके देखा कि यहाँ पे माइनस b/2 आ रहा है और यहाँ पे माइनस b/2 आ रहा है, तो ये दोनों एक ही आंसर है ना, अलग अलग तो आ नहीं रहे, एंड हेंस वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नंबर 2, केस नंबर 2, if d is greater than 0 and a perfect square, let us take for example d greater than 0, let's say for example d is equals to 4, let's say d का वैल्यू 4 है। अगर d का वैल्यू 4 है तो फिर x क्या होगा? चलिए यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट आई एम राइटिंग दिस पोर्शन हियर, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। नीचे नहीं लिख लो, मैं यहां लिख। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस बी प्लस -2/2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। यहां पे दो आंसर आ रहे हैं, माइनस बी प्लस 2/2 है, और एक आंसर आ रहा है माइनस बी माइनस 2/2। नाउ यू टेल मी एवरीवन, अगर d ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 4, जैसे कि 25, जैसे कि 16, जैसे कि 49, अगर इस तरह के नंबर्स है तो मुझे एक बात बताओ, माइनस बी, पहला बात ध्यान देना, a b c सारा रैशनल नंबर्स है। क्या है? रैशनल। √2 √3 ऐसा नहीं है, रैशनल नंबर्स है। तो एक बात बताओ, माइनस बी प्लस 2/2 है, माइनस बी माइनस 2/2 है, पहले मुझे ये बताओ कि a एंड b डिस्टिंक्ट होगा या इक्वल होगा? पहले ये बताओ। डिस्टिंक्ट। अनइक्वल। अनइक्वल, वही डिस्टिंक्ट हुआ। लेकिन एक बात बताओ, माइनस बी प्लस 2, माइनस बी माइनस 2, ऑब्वियसली अलग अलग आंसर आएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये एग्जैक्टली रैशनल के अंदर, सॉरी रियल नंबर्स के अंदर कौन सा होगा? रैशनल होगा या इरैशनल होगा? रैशनल होगा। डेफिनेटली रैशनल होगा। एक बात बताओ, 3 इज अ रैशनल, तो 3 + 2/5 क्या होगा? 5/5। ये रैशनल है, कहीं रूट नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर तो रैशनल ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं रूट्स आर
रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। तुम लोग रियल भी बोल सकते हो, कोई आंसर मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर तुम मेंशन करो कि रैशनल एंड डिस्टिंक्ट तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन कंफ्यूजन अगर है तो तुम रियल लिख दो, बेटर है रियल लिख दो, बिकॉज रैशनल भी रियल होता है और इरेशनल भी रियल होता है। तो एक काम करो, पहले ये 2 पॉइंट्स को कॉपी करो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग 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 रूट से अल्फा और बीटा, और कैसा है अल्फा और बीटा, रैशनल। तो एक बार कॉपी करो तो फटाफट। Now third point, if d is greater than 0 but not a perfect square, if it is not a perfect square means what is that number then? Then if it comes in square root and the square root, that number is called what, irrational or rational? Irrational. So d is 2 is not a perfect square. If I put 2 here, you will get two answers. One is minus b plus root 2 by 2a, and the other answer is minus b minus root 2 by 2. Now first of all, the answers are distinct, that is clear. ये तो सबको clear है. But answers will be rational or irrational. Tell me. Rational or irrational? Irrational. Rational. It will be irrational, क्योंकि ये root 2 क्या है? Irrational number है ना? Irrational number. जैसे मान लो root 2 irrational है, तो root 2 plus 1 क्या होगा? Obviously irrational. क्योंकि root 2 अगर non terminating और non repeating है, तो उसमें हम अगर 1 ऐड कर दें, तो आंसर क्या होगा? 2 point non repeating ही तो होगा. तो that's why please make sure that it is irrational number. तो ये हो गया तुम्हारा distinct roots are irrational and distinct. देखो मैंने इतना ये 2 और 3 को अलग अलग करके बता दिया, but it is not required. तुम ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट. क्या बताओ तो? If d is greater than 0, if d is greater than 0, then the roots are real and distinct. डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो. जो मैंने इतना मतलब बताया ना कि d greater than 0 and perfect square, d greater than 0 and not a perfect square, तुम इन दोनों को मर्ज करके तुम एक लाइन में एक बात बोल लिख सकते हो कि अगर d greater than 0 होगा, मतलब क्या होगा बताओ तो? Roots are real and distinct. That's all. This is sufficient. Because all rational numbers are also real numbers, all irrational numbers are also real numbers. So अगर तुम इन दोनों को मर्ज करना चाहो तो एक साथ भी बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग ये चाहिए नहीं, बट जान लेना बेटर है. Okay? Now next. And the last one is very very simple. मैं लिखते ही तुम लोग आंसर बता दोगे. सर डिस्टिंक्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया. डिस्टिंक्ट वर्ड मतलब इंग्लिश में डिफरेंट को बोलते हैं. डिफरेंट आंसर मतलब जो तुम्हारा जो रूट्स होगा ना वो डिफरेंट होगा. ये रहा अलग अलग. माइनस बी प्लस रूट 2 माइनस बी माइनस रूट 2, तो आंसर क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा. जो तुम्हारा रूट्स होगा वो क्या होगा? डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होगा, अनइक्वल होगा. इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? रूट्स आर इरेशनल एंड दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 4. if d is less than 0, let's say for example if d is minus 2, then x is minus b plus minus square root of minus 2 by 2. Now what type of roots are you finding here? Irrational and unequal. नहीं, irrational. यहाँ irrational कहाँ से लिखा है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को irrational बोलते हैं. इमेजिनरी. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो इमेजिनरी है. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट्स आर इमेजिनरी. मतलब यहाँ पे रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे. इस केस में जो रियल रियल रूट जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर. रियल मत बोलना. रियल मतलब सर रियल, ये रियल चीज है, ये डुप्लीकेट चीज है, वो वैसा नहीं बात कर. मैथ्स में रियल का मतलब रियल नंबर्स. ओके, सो रूट्स आर नॉट, आई मीन रूट्स आर इमेजिनरी. मतलब इसमें जब b का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो फिर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसीलिए तुम लोग क्लास 10 में इस तरह का जब भी सॉल्यूशन आता था तुम लोग क्या लिखता था? नो सॉल्यूशन. क्यों लिखता था नो सॉल्यूशन? क्योंकि रियल आंसर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. मतलब रियल रूट्स, रूट्स कैसे है? इमेजिनरी. अगर d का वैल्यू लेस देन 0. कॉपी करो. सी एवरीवन, सम नंबर सी का हेडिंग क्या है देखो एक बार. नेचर ऑफ रूट्स. मतलब ये क्वेश्चन टॉपिक जो है नेचर ऑफ रूट्स पे है, उसका हम सम नंबर 1 बताया. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है?
find the roots, find the nature of roots without determining the actual root. मतलब बिना उस इक्वेशन को सॉल्व किए हुए तुमको उसका नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करना है कि रूट्स कैसा हो. तो पहला क्वेश्चन एक बार बताता हूं. सपोज वी हैव 3x स्क्वायर minus 7x plus 5 equals to 0. तो नेचर डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को a, b और c डिटरमाइन करना है. So here the value of a is 3, the value of b is minus 7 and the value of c is plus 5. So let us determine the discriminant value which is b square minus 4ac. मतलब minus 7 का whole square minus 4 into a into c. What is 49 minus 60? It is minus 11. Now tell me ये d का वैल्यू कैसा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किस केस को मैच कर रहा है? 4 because d का वैल्यू minus 11 है जो कि less than 0 है. Therefore the roots are imaginary. Roots are what? They are imaginary here. Okay? Is this clear? मतलब हम लोग को क्या करना है बिना सॉल्व किए हुए और d निकाल के जो d का वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग को कंक्लूजन देना है कि कैसा होगा रूट्स. एक फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज d का वैल्यू 2 है तो बताओ तो d का वैल्यू 2 है मतलब रूट्स कैसा होगा? Distinct and irrational. If you say distinct and irrational that is 100% correct. But if you say distinct and real कोई प्रॉब्लम तो भी एक ही बात है because all rational numbers and irrational numbers are real numbers. So अगर तुमको rational irrational ना बोलने आए सबसे बेस्ट है तुम real numbers बोलो. So these two which is greater than 0 so it is okay. So अगर मान लो तुमको rational irrational exactly नहीं बोलने आए तो real numbers बोलो. So d equals to 2 means roots are rational and roots are real and distinct. That's all. Now if the value of d is 0 what is the nature of roots? Real and same. Real and equal, real and same एक ही बात सब कुछ एक ही. समझ में आया बात? क्लियर? अगर d का वैल्यू सपोज -3 है तो क्या होगा बताओ तो? imaginary. मतलब अगर तुमको लिखना हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रियल सॉल्यूशन क्या होगा तो आंसर क्या होगा बताओ? रूट्स आर इमेजिनरी. अगर तुम पूछेंगे कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा तो आंसर क्या होगा? जिसका वैल्यू d -3 है, if d is -3 so what is the real solution if I ask? The not real No solution. Very good, no solution. क्योंकि अगर d -3 है मतलब वो उसका इमेजिनरी मतलब रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी होगा. तो अगर हम पूछेंगे कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा तो तुम्हारा आंसर होगा नो सॉल्यूशन क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसा है? इमेजिनरी है. इसका रूट्स कैसा है? इमेजिनरी है. तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन. I hope you are getting my point. Now I want everyone to copy down this sum and try 1 का number 4. There are 4 questions under number 1. You try number 1 का 4. Hurry up. 1 का number 4. And then we will start number 2. Please do fast. Now everyone note down the next sum. So the answer of number 4 is that the value of d is less than 0, so the roots are imaginary. Next. Now 2 का number 1 देखना है. Okay, 2 का 1 देखो. See, you are given a quadratic equation. The quadratic equation is 2x square plus k into x plus 3 equals to 0. This is a quadratic equation given to you. Please read the heading. 2 का heading read करो देखो क्या लिखा हुआ है. Find the values of k for which the following quadratic equations has equal roots. So tell me everyone, इस quadratic equation का जो दो आंसर आएगा अल्फा एंड बीटा, वो अल्फा एंड बीटा कैसा होगा बताओ तो? Equal. अल्फा इक्वल टू बीटा. तो अब बताओ तो अगर रूट्स इक्वल होता है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है डिस्क्रिमिनेंट? b squared minus 4ac b square minus 4ac equal to 0. क्लियर? वेरी सिंपल सारा लिखा हुआ है. पहला कंडीशन d equal to 0, roots are real and equal. Number 2, d greater than 0, roots are real and distinct. Number 3, if d is less than 0, roots are imaginary. मतलब मैंने 2 और 3 को कंबाइन कर दिया यहाँ पे. और सीधा बात स्ट्रेट ऐसे यहाँ पे 1, if d is equal to 0, roots are real and equal. If d is greater than 0, roots are real and distinct.
If t is less than 0, they are imaginary. So there I had explained you categorically कब rational होगा कब irrational होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 और 3 को merge कर दिया. तो यहाँ पे देखो क्या है, since roots are real and equal, so it implies b square minus 4ac is equal to 0. b square मतलब k का होल प्लस k का होल minus 4 into a is 2 into c is how much 3. इसको सॉल्व करके हम लोग को k का वैल्यू निकालना है. So I can write k square equals to 24. So k equals to how much? Tell me everyone. Plus minus 24. Yes, plus minus root 24. What is the value of root 24? 24 is not a perfect square, but yes, we can reduce 24. 24 root 24 को और simplify कर सकते हैं. इसको factorize कर लो. 2 into 2 को 2 लिख सकते हैं और बाकी तुम्हारा स्क्वायर निकाला तो root 6. समझ में आया ना बात? ये 2 2 जा 4 तो 2 को एक बार लिखो. इसका पेयरिंग हुआ एक बार तो 2 लिख दिया. इसका पेयरिंग नहीं हुआ तो रूट के अंदर 2 3 जा 6 लिख दिया. उसको क्या लिख सकते हैं? 2 root 6. Alright everyone, now I want everyone to copy down this sum and try the next sum after this, which is based on the same concept. What is the concept? Find k if the roots are real and equal. So 2 का नंबर अभी तुम लोग ट्राई करेगा नंबर 2, उसके बाद नंबर 4. ठीक है, 2 का 2 and 4. सर वो 2 root 6 लिखना कंपलसरी है. हाँ बेटर होगा, ऐसे तुम आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो. ठीक है, आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए. So everyone note down. Let me just discuss, okay, like if you have any problem you can check and you can rectify whatever mistake you have made. So the first question is k plus 4 into x square plus k plus 1 into x plus 1 equals to 0. Now this is the quadratic equation. You have to determine the value of k such that its indiscriminate value is equals to how much? 0. So since roots are real and equal, so it implies its discriminant value will be equals to 0. That is b square. And याद रखना एक चीज कि जो गिवन इक्वेशन है वो ax square plus bx plus c equals to 0 के फॉर्म में होना जरूरी है. ओके, तो फिर यहाँ पे ax square plus bx plus c equals to 0 के फॉर्म में है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 मतलब b square minus 4 into a into c that is 1 equals to 0. So we have k square plus 1 plus 2k minus 4k minus 16 equals to 0. That is k square minus 2k minus 15 equals to 0. If we factorize, so either the value of k is 5 or the value of k is minus 6. So these are the two answers. Please check your answer. Everyone, ये आंसर ये तो next. Yes. 5 because Yes sir. given roots are Oh, sorry. real and Yeah, it's plus 5. It's plus 5. X equals to plus 5. Next. Now the second question is number 4. Okay, 2 का number 4. So we have k times k into x. But ये वाले समय देखो एक बार, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. So let me open the bracket by multiplication.
So kx into x becomes how much? K into x square. Plus into minus is minus 2 root 5 into k into x. Now it is in standard form. So what is the value of a? It is k. What is the value of b? It is minus 2 root 5k. And what is the value of c? It is 10. So since roots are real and equal, so we find that its discriminant value will be equals to 0. That is b square minus 4 into a into c, that is 10, will be equals to 0. तो इसको सॉल्व करके क्या है बताओ तो? -2 का स्क्वायर इज 4, √5 का स्क्वायर इज, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? -2 का स्क्वायर इज 4, √5 का होल स्क्वायर इज 5, 4 5 जा 20 into k square. This is -4040k. अच्छा एक बात बताओ, याद है मैंने फर्स्ट डे भी बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टर्म को राइट में नहीं लेके जाएंगे. याद है इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने बोला था. तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो बताओ तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? 20k. ठीक है. और मैं किस चीज का बात कर रहा हूं नहीं करने के लिए? 20k square equals to 40k. तो बहुत लोग k कैंसिल कर देंगे. Avoid this, please note down everyone, avoid this, because if you cancel k both sides, you are losing one solution. Clear or not? जो कि यहाँ पे मिल रहा है, देखो तुम लोग को, either 20k equals to 0 और k minus 2 equals to 0. तो यहाँ से k का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से k का वैल्यू 2 आ गया. ऑलराइट एवरीवन, अगर तुम लोग यहाँ पे k कैंसिल करते हो मतलब वो जो एक सॉल्यूशन है, you are losing one solution. Please don't do that. That is logically incorrect. Okay? Now, तो सबको एक बार आंसर अपना वेरीफाई कर लें. नेक्स्ट सम. इसके बाद का नेक्स्ट सम क्या है देखना एक बार. You have to try question number 3 and number 4 both. Just one. Question number 3 and 4 both. The questions, right? So everyone note down question number 3. So you are given a quadratic equation which is already in standard form. So we have 1 plus m square into x square plus 2 into m into c into x plus c square minus a square equals to 0. मतलब हम लोग को जो प्रूफ करना है, किस कंडीशन पे प्रूफ करना है हम लोग को, ये क्या कंडीशन को यूज करके प्रूफ करना है? That the roots are real and equal. ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन को लेके हम लोग को प्रूव करना है. सो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, so it implies its discriminant value will be equals to 0, that is b square minus 4 into a into c, that is c square minus a square equals to 0. बस इसको सॉल्व करते जाना. ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना. तो यहाँ पे 2mc का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, mc का होल स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर. Let us multiply these two expressions in bracket. Okay, so we have c square minus a square plus m square c square minus m square a square. Minus plus minus 4c square minus minus plus 4a square minus 4m square c square minus minus plus 4m square a square. Now see 4m square c square gets cancelled. Okay, all right. और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, देखो और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है. इसके बाद क्या करना है देखो एक बार.
अगर तुम प्रूफ पार्ट को ध्यान से नोट करो, so in the proof part it is very clear that you have to keep c square on one side and rest all terms on the other side. All right, तो हम क्या करेंगे, c square को एक तरफ कर देंगे. उसके बाद देखो हम लोग को क्या करना है, c square equal to a square into 1 plus m square. फिर इन दोनों में से हम लोग 4a square कॉमन लेते हैं. If I take 4a square common, what is left? 1 plus m square. 4 gets cancelled, and so the result is c square equals to a square into 1 plus m square. This is what we have to do. है ना, बहुत अच्छा सम, सिर्फ एग्जाम्स में आने वाला सम है, ठीक है. कॉपी. So I want your attention here. Question number 4. And so number 4 में क्या है, देखो एक बार, you are given a quadratic equation whose roots are, I mean the equation is x square plus x plus b. इस quadratic equation का roots real and unequal है. Roots are real and unequal. Real and unequal means real and distinct. So it implies d will be greater than 0. देखो यहाँ पे ये कोई मेंशन नहीं है कि रूट्स इरेशनल है या रैशनल विद डिस्टिंक्ट है या इरेशनल विद डिस्टिंक्ट है, ऐसा नहीं है कुछ. यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल एक ही बात हो, डिस्टिंक्ट अनइक्वल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ले लेंगे d ग्रेटर देन 0. व्हाट इज d? इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. यू नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac में b क्या रिप्रेजेंट करता है, x का कोएफिशिएंट, मतलब 1 का स्क्वायर है. 4 टाइम्स a दैट इज a, c यहाँ पे क्या है b. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0. मार्क इट एज 1. अब देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है, देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x square plus 1 by x equals to 4 root ab. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है, इमेजिनरी है. इसका रूट्स इमेजिनरी प्रूव करना, ठीक है. सो देखो एक बार ध्यान से, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट. Let us cross multiply this first and express in standard form. All right. After we have expressed in standard form, now let us determine the value of t, that is discriminant. You know discriminant is b square minus 4 into a into c. अच्छा बताओ तो मुझे क्या प्रूफ करना है इसमें. देखो ये प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इमेजिनरी है. तो बताओ तो रूट्स इमेजिनरी कब होता है, बताओ. d less than 0. d less than 0 होता है. मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है. अच्छा बताओ तो 0 से लेस जो भी नंबर्स होता है उसका साइन कैसा होता है, बताओ. नेगेटिव. नेगेटिव होता है. मतलब हमको ये शो करना है इस एक्सप्रेशन का जो साइन है वो नेगेटिव है. तो कैसे शो करेंगे, ध्यान. सबसे पहले दोनों में से -4 कॉमन ले. क्यों मैंने बोला -4, इसका हम कारण बताएं. क्यों मैंने 4 नहीं बोला, क्यों -4 बोला. देखो कारण ये है कि जब -4 कॉमन लेंगे तो जो बाकी एक्सप्रेशन है मुझे वो पता है कि वो कैसा है. देखो ये समझ में हमने क्या बोला, देखो ध्यान से. अगर हम इन दोनों में से -4 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 - 4ab. प्लीज चेक वंस. माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 into 4ab 16ab. करेक्ट है ना. हमको 1 - 4ab का साइन पता है. तो बताओ तो 1 - 4ab का साइन ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ. Positive. तो इस ये साइन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. सो व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव? नेगेटिव. समझ में ना. -4 मतलब नेगेटिव, 1 - 4ab मतलब ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव. v मतलब पॉजिटिव, ठीक है. कहां से, फ्रॉम 1. तो व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव.
नेगेटिव मतलब d का वैल्यू लेस देन 0 है कि नहीं, नेगेटिव मतलब d का वैल्यू लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। कॉपी कर लो।